प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि और प्राचार्य महोदय पधार चुके हैं। कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करें। मैं अपना मैम से निवेदन करूंगा कि सबका बैच ट्रेनिंग का स्वागत करें। अभिनंदन एवं चित्रांश क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और अभिनंदन क्लास 12 के। प्राचार्य महोदय को कंप्यूटर साइंस और मेरा सर पीजीटी इंग्लिश। अभिनंदन बैच। सर आप यहाँ आसन ग्रहण कर लें। मेरा सर जी प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि आप विदित है कि हम लोग आज राष्ट्रीय खेल दिवस हेतु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय बहुत ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनके बारे में मैं थोड़ा सा अपने इनका परिचय आपका करा दूँ। श्री CP यादव सर राष्ट्रीय स्तर के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं वॉलीबॉल में। उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल जो संघ है उसके सर जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और अपने शाहजहांपुर जिले के ये वॉलीबॉल संघ के सेक्रेटरी हैं। सबसे बड़ी बात हमारे बीच में वॉलीबॉल टीम, जो भारतीय वॉलीबॉल टीम हमारी सेलेक्ट होती है, राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के चयनकर्ता हैं सर। आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। हम विद्यार्थी जो हमारे बीच में हैं वो मंच पे आ जाएं और अपनी स्पीच दें। Good morning all of you. I am Vaishnavi Mishra of class 12C and I am here with my views on fitness at home during COVID-19. The COVID-19 pandemic is an unprecedented time all across the world. Worldwide, extensive social distancing policies are put into place, restricting people's daily activities. This of course means that most of the people will spend much of their time at home. These social distancing measures mean that people have far fewer opportunities to be physically active, especially if activities such as walking or cycling as transportation are being restricted. Furthermore, these drastic measures also make so much easier to be sedentary at home for a long period of time. The impact of this physical inactivity may very likely be seen in many areas such as health and social care and the mental well-being of people all across the globe. Although these social distancing measures are important and needed in a time such as now, our bodies and minds still need physical activity and the many benefits thereof. Physical activity is defined as the bodily movement produced by skeletal muscles that require energy expenditure.
During the COVID-19 pandemic, it is even more important for all people to be physically active, even if it's only a short break from sitting at your desk and doing some walking or stretching. Doing something as simple as this will ease muscle strain, release mental tension, and there are many benefits of physical activity. These include strengthening and maintaining our immune system and being less susceptible to infections, reduce high blood pressure, weight management, reduce the risk of heart disease, diabetes, stroke, and some cancers also. During the COVID-19 pandemic, being physically active will be a challenge for all of us, but it is critical that we find and plan ways to be active and reduce our sedentary time. Although our movement around our neighborhood, town, city, country, and world might be restricted, it remains critical that we all move more and sit less. Thank you. प्राचार्य महोदय से कृपया ध्यानचंद के जो हमारे चित्र हैं उन पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। स्टूडेंट साइड से वैष्णवी अभिनंदन स्टडी को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य अतिथि शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज के दिन यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह उनके एक और भाई थे जो हॉकी खेलते थे, रूप सिंह यादव के बड़े भाई थे। उनके माता का नाम शारदा सिंह एवं पिताजी का नाम सामेश्वर सिंह था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्होंने सेना में ही हॉकी खेला। मेजर ध्यानचंद के दो बड़े भाई मूल सिंह और रूप सिंह थे। उनके पिता के सेना में रहने के कारण उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा और अंततः परिवार झांसी में आकर के बस गया। मेजर ध्यानचंद को ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से शिक्षा प्राप्त हुई। मेजर ध्यानचंद 16 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1922 और 1926 के बीच विशेष रूप से सेना हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंटल गेम खेला उन्होंने। अंततः उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया, जिन्हें न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था। इस प्रकार उनके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल में उनकी शुरुआत हुई। बाद में भारत के विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होने लगी। वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिसमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक। तीनों ही वर्षों में भारतीय टीम ने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते। सर के उसमें श्री ध्यानचंद के टीम में रहते हुए उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल किए। हॉकी में 1000 गोल को क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है। जब वे मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी
उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बहुत से संगठन और प्रतिष्ठित लोग समय समय पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते रहे। लगातार अच्छे खेल प्रदर्शन के कारण सन 1927 में वे लांस नायक बना दिए गए। सन 1932 में नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे और उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सन 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्रता होने पर सन 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई और अंत में उन्हें मेजर बना दिया गया। मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में सब ब्रैडमैन के समान समतुल्य माना जाता है। गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से छूती रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका रहती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक पे चुंबक होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह से गेंद चिपकी रहती थी उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोल लगे होने की बात कही गई। मेजर ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के इतने किस्से हैं कि शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में सुने गए हों। प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी इस कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर जैसे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा। वियना में मेजर ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए हुए एक मूर्ति लगाई और दिखाया कि मेजर ध्यानचंद कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें हॉकी विजार्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार 1956 में मेजर पद के साथ 51 वर्ष की उम्र में वे सेना से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान में माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविरों में हॉकी सिखाया। बाद में उन्हें NIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में कई वर्षों तक मुख्य प्रशिक्षक के पद पर बने रहे। मेजर ध्यानचंद ने अपना आखिरी समय झांसी उत्तर प्रदेश में अपने घर पर बिताया। इस प्रकार हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद 3 दिसंबर 1979 में तो इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने जीवन की यादों को लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गए। इस प्रकार जहाँ भी आपकी जगत की चर्चा होगी वहाँ मेजर ध्यानचंद अमर रहेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्राचार्य महोदय आकर बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप वचन दें आपको। श्री प्राचार्य। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री CP यादव जी, मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ पे इस आयोजन जो मेन मकसद या मुख्य मकसद हमारा यहाँ पे है मेजर ध्यानचंद जी की सम्मान स्वरूप राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। और ये महसूस होता है कि जिस प्रकार से हॉकी के जादूगर श्री मेजर ध्यानचंद जी ने खेल को नया आयाम दिए, भारत को हॉकी के अंदर न सिर्फ पदक दिलाया बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी पहुंचाई, तो एक जरूरत महसूस होती थी कि इस महान विभूति को राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे आयोजन को उनसे जोड़ा जाए, जिससे कि ये जो नौजवान पीढ़ी है, आप लोग हैं, इस नौजवान पीढ़ी में उत्साह का संचार, एक सोच विकसित हो जिसके तहत
हम लोग ना सिर्फ स्वयं फिट रहे बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी हम लोग ऐसा बनाएं कि हमें एक नई ऊर्जा का संचार हो। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं और इस दौरान हमने देखा कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ थे वो इस कोविड के दौरान भी किसी प्रकार की भारी क्षति उनको नहीं पहुंची। इसके विपरीत जो शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ नहीं थे, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, एनर्जी लेवल अच्छा नहीं था, तो हमने देखा उनको काफी तकलीफें झेलनी पड़ी और बहुत सारे लोग हमारे बीच से विदा भी हुए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस न सिर्फ स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि इस प्रकार के आयोजनों से हमें पता चलता है कि एक शारीरिक चुस्ती फुर्ती की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। और अगर यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ के किया जाए जो हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेजर ध्यानचंद जी से इधर कोई और भी शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर हुई जो एक प्रकार से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो सके। तो वो बिल्कुल सही जिसे कहते हैं कि हमने भारत सरकार का धन्यवाद देंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में श्री मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है और एक प्रकार से ये प्रेरणा है हम नौजवानों के लिए कि हमें भी एक पुरानी कहावत चलती थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी कामयाब है और जो खेलने कूदने वाला व्यक्ति है वो भी कामयाब है। लेकिन शर्त यही है कि अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कामयाब होगे और मन लगा के शिद्दत से खेलोगे तो कामयाब होगे। यानी आधे मन से किया गया कोई भी काम आपको सफलता नहीं देगा। ना आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे, ना ही अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। तो जय हमने देखा कि हमारे सामने ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, कितना गर्व महसूस होता है जब कोई हमारा खिलाड़ी पदक लेके आता है। तो वाकई मैं मतलब इस ओलंपिक के दौरान देख रहा था कि किस प्रकार से पूरा हिंदुस्तानी रोजाना सुबह से ही कमेंट्री शुरू हो जाती थी कि भाई आज इसका इवेंट है और हम टीवी पे नजरें गड़ाए रखते थे कि जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है किसी खेल का। और जब खिलाड़ी हमारा प्रदर्शन करता है और वहाँ मेडल जीत के लाता है और राष्ट्रीय गान जब बजता है किसी देश का, तो जो एक कहते हैं एक प्रकार का आपके अंदर भावना जागृत होती है वो एक अलग ही। तो बच्चों देखिए आज की तारीख के अंदर खेल को मैं दो तरीके से लेता हूँ। एक तो खेल इसलिए जरूरी है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, आपकी फिटनेस बनी रहे, आप में ऊर्जा रहे, आप ऊर्जावान महसूस करें। तो जाहिर सी बात है जब आप ऊर्जावान महसूस करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, अन्य कार्यों में भी आप अच्छे से समय दे पाएंगे। लेकिन होता यह है कि जैसे मैंने कहा अधूरे मन से कोई कार्य करता आप लोगों के लिए आप अपना करियर शिक्षा के माध्यम से भी बना सकते हैं, खेलों के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ। और इस प्रेरणा के लिए हमारे लिए मेजर ध्यानचंद जी से उदाहरण अच्छा कोई नहीं हो सकता कि फौज में सिपाही के तौर पे भर्ती होना, अपने खेल में प्रदर्शन के आधार पे वो मेजर पद तक गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, भारत को ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल दिलवाना और हॉकी के अंदर नए से नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ये वाकई में आज हमारे लिए और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर पाए। और हमारे बीच में श्री सीपी सिंह यादव जी, जो कि जिनका परिचय श्री नारायण जी ने आपको दिया, कि वॉलीबॉल में न सिर्फ बहुत अच्छे खिलाड़ी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी इंडियन नेशनल वॉलीबॉल टीम चुनी जाती है उसके चयन करता, सेलेक्ट करता। तो आप लगा लीजिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। और अभी मेरा सर से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इस वक्त वॉलीबॉल में सर्वाधिक मेडल, जितनी प्रतियोगिता हो रही है हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ले रही है। तो ये बधाई की बात है कि सब राष्ट्रीय चयन करता है
राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को पहचान मिल रही है। प्रदेश स्तर पे सर टीम सिलेक्शन से लेके सारी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार से नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है वो वाकई में उसके लिए आपको सर धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश का आप मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य के अंदर कि वॉलीबॉल जो है हम लोग उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमारी राष्ट्रीय टीम की भी हो कि हम लोग ओलंपिक में मेडल लाए अगली बार। और भी जितने आयाम स्थापित हो सकते हैं वो आपके सहयोग से स्थापित हो। आपको एक बार मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसी शख्सियत हमारे बच्चों के बीच में आई, जिसकी वजह से बच्चों को प्रेरणा मिले कि अगर कोई सच्चे मन से लगन से कोई काम करना चाहता है तो बेशक उसको उसमें सफलता मिलती है। तो बच्चों हम लोग इस बात का ख्याल रखें। अपनी गवर्नमेंट ने भी नारा दिया ना, फिट इंडिया, तो खेले इंडिया, बड़े इंडिया और फिट इंडिया। और फिट इंडिया तभी होगा जब हम लोग खेले भी, कूदे भी, दौड़े भी, भागे भी और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यू शुड बी फिजिकली फिट। एक साल पहले स्वस्थ होना कोई बहुत अच्छी चीज, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज नहीं थी जिसकी को तारीफ करे। लेकिन इस कोरोना काल में अगर कोई फिजिकली फिट है और उससे कोई बीमारी नहीं हुई तो लोग बधाई देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ना। तो आप लोग फिट रहिए, पूरे मनोयोग से साथ अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जो बच्चे खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं पूरा मन लगा के खेल में प्रयास करिए। और अगर आप मेहनत करेंगे, प्रेरणा लीजिए उन लोगों से जो हमारे पीछे एक लीगेसी छोड़ के गए हैं, एक विरासत छोड़ के गए हैं। और उस विरासत के जो सबसे अग्रणी और पायनियर जो थे वो श्री मेजर ध्यानचंद जी थे। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और सबसे बड़ी बात इन महान विभूतियों से प्रेरणा पाएं। और प्रेरणा ये कि अपने पूरे मनोयोग से किसी भी कार्य को किया जाए तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। एक बार पुनः मैं राजनारायण जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से हम सर से परिचित हो पाए, हमें मौका मिला आपसे बातचीत करने का। और ये वाकई में शहजादपुर का भी सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे खिलाड़ी हैं। सर वैसे तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब शहजादपुर में ही हम सेटल हो गए यहाँ पे और यहीं से ही अपनी बाकी गतिविधियां यानी नए खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। तो आप में से भी अगर कोई वॉलीबॉल में जैसे अपना करियर बनाने का इच्छुक हो, खेलों में अपना करियर बनाने का इच्छुक हो, तो राजनारायण जी की मदद से आप सर से संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा उसमें मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोगों ने बहुत खिलाड़ी दिए हैं, विद्यालय में भी हम लोग SGFI में हमारे कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, मेडल भी लाए हैं। लेकिन कई बार एक गाइडेंस के अभाव में वो अपने खेल के करियर को पीछे छोड़ देते हैं या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में पीछे छोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में अगर प्रतिभा है, आप अगर SGFI के लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप अपना करियर जरूर बनाएं खेलों में। अगर आप अपना एक करियर के तौर पर उसे चुनते हैं तो वहां पे भी आपको सफलता मिल सकती है। शर्त ये है कि मन लगा के किसी भी कार्य को करना पड़ेगा, लगन से करना पड़ेगा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और सभी सम्मानित साथियों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का बीच में आके मैं अपने आप को गर्मान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपको प्रचार महोदय और हमारे टीचर आपके यहाँ मुझे मौका मिला, मैं आपको बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे बोलना के लिए कहा गया है, खिलाड़ी को मैदान में खेलने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो भी है बोलने के लिए कहा गया तो मैं बोलूँगा। ध्यानचंद जी ने हमारे देश में जो पहचान बनाई वो उनके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं वॉलीबॉल सन 1918 से खेला और मैंने 30 बरस
ऑफ इंडिया 30 विन किया। हमारी टीम कभी भी नहीं आई। ये एक हमारा ये वो रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक में भी किया जा सकता है। जाती है, मैच खेलती है, कभी तो हारती है, लेकिन मैं कभी। मैं जब बहुत छोटा था, आपके बराबर था, तो मेरे पापा कहते थे मत खेलो, खेल में कुछ नहीं करता, लेकिन माँ कहती कि नहीं बेटा खेलना चाहती हूँ। तो मैं रात में माँ के पैर दबाता था, कहता था माँ भले मुझे एक टाइम खाना मिले, लेकिन खेलने के लिए दोनों टाइम। ये मेरी लगन थी। हमारे सर आते थे पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा रहे होते थे, मेरा एक काम ग्राउंड में पुलिस लाइन की ग्राउंड लगा रहता था कि अब वॉलीबॉल स्टार्ट हो गया है, नॉकिंग होने लगी है, वार्म अप हो रहे हैं, तो मेरा ये था किसी तरीके से मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे में हमारे सर इधर से निकलते थे, मैं इधर से ग्राउंड भाग के ग्राउंड में पहुंच जाता था तुरंत। तो धीरे धीरे मैं गेम खेलने लगा और पकड़ने लगा। लोगों ने देखा कि भाई बच्चा अच्छा खेलता ग्राउंड में। तो 1978 से मैंने खेलना शुरू किया। अभी तक मैं लगभग खेला। अभी मैंने पिछले साल 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी भारत सरकार को उत्तर प्रदेश से दिए और सारे मेडल मिनी, जूनियर, सब जूनियर, यूथ, खेलो इंडिया, सारे मेडल उत्तर प्रदेश को हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने NIS भी किया है पटियाला से, जहाँ पे हमारे ध्यानचंद जी NIS करने के बाद वही कोचिंग करते रहे काफी समय तक, टीमों को तैयार करते रहे। मैंने भी वही सीख लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप गेम खेलेंगे, फिट रहेंगे, तो आप पढ़ाई अच्छी करेंगे, आप लोगों के बीच में अच्छी तरीके से पहचाने भी जाएंगे। जब आप स्वस्थ हैं तो एक आदमी से अधिक काम कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल जो आदमी है जो नहीं खेलता है और गेम खेलते हैं, तो उससे आप कार्य करने की क्षमता पूरी हो जाती है। आप देश की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप फिट हैं। आप लोगों की, पड़ोसी की, देश की तभी सेवा कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं है तो फौज में भी भर्ती नहीं हो सकते। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं। देश ताजमहल कहाँ है बताइए? इंडिया में और संगमरमर की खान कहाँ है बताइए? नहीं, क्योंकि ये जयपुर में, उदयपुर में मकाना एक जगह है, वहां से बहुत सारा पत्थर निकलता है जो पूरे भारत में लोग अपने मकान के निर्माण वगैरह में वहां से थोड़ा सा पत्थर लाते आगरा में लगाया गया और उसके संगमरमर जो लगाया गया, कारीगर ने तराशा, उसको तराशने के बाद उसमें अनुशासन लागू किया गया, तराशा गया। तो आज वो पत्थर वहां लगाया गया जिससे आज आगरा की पहचान बनी, ताजमहल की पहचान बनी। तो उसी प्रकार आपके शिक्षक भी आपको तराशने की कोशिश करते हैं, आपको गाड़ने की कोशिश करते हैं, तराशने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे बने। अनुशासन लागू, उसमें ताजमहल का अनुशासन लागू किया गया, तभी तो बढ़िया से बना। तो आपको भी तराशने का काम किया जा रहा है। तो आप लोग भी अपने शिक्षकों का आदर करिए, सम्मान करिए। ये वो उम्र है जो आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। बस निश्चय होना चाहिए कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है। जब आप एक बार मन में ठान लेंगे तो वो कोई चीज आसान नहीं। अगर IPS बनना चाहते हैं कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है।
आपको लगन से करनी होगी, आपको यहाँ से करनी है, मुझे ये करना है। आपको दिन में 24 घंटे सोते जागते यही दिमाग में रहेगा कि मुझे ये बनना है, बन जाएगा, ये बड़ी चीज है, लगन होनी चाहिए। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है, जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको मेरी सेवाएं हमेशा मिलती रहेगी। हमारे यहाँ कोच हैं, मैंने अभी मिशन खिलाया एक बच्चे को है और वो एनालिस करके आए हैं, तो वो यहाँ कैंप लगा रहे हैं। जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं, उनको जो है कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, और उनको हर चीज उपलब्ध कराओ, कुछ नहीं लेना, बॉल है, नेट है, ग्राउंड है, लाइट है, सब मिलेगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जैसे यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ भी आप समय दे रहे हैं तो कुछ बन के जाएंगे, ये सोच के जाइए कि मुझे कुछ बनना है आगे तक, वो समय अब आपका आ गया है, यहीं से आपको तैयारी करनी है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं, शाहजहांपुर में भी कम से कम 4 बच्चों ने नेशन खेला। एक बच्चा यहाँ खेल के आया जो सरदार है, सवाल नगर का बच्चा, वो चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल लेके आया, वो हमारा ही शिक्षक, हमारा ट्रेनिंग है। और दूसरा बच्चा जो है 8 की लड़की एक है, उसने भी श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल लिया। एक बच्चा और 4 बच्चों ने शाहजहांपुर को पिछले 2 सालों से किया है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं प्रचार महोदय से अनुरोध करता हूँ कि जो बच्चे जो हैं खेलने की इच्छुक हैं उनको दिया जाए। अगर आप लोग चाहेंगे यहाँ कैंप के लिए तो मैं आपके विद्यालय में भी कैंप लगा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय निकाला, साथ में मुझे भी यहाँ बुलाने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप लोग एक नारा लगाएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आवाज नहीं आ रही है, जोर से, जय हिंद, जय हिंद, जय मातृभूमि। A very good note to all. मैं यहाँ बैठकर कैसा महसूस कर रहा था, हो सकता है कि आने वाले क्षणों में अपने शब्दों से उसे बयां कर पाऊं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब बात खेल की होती है, और हमारे प्रचार जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक धारणा हुआ करती थी कि पढ़े हुए लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जिस अवधारणा को पूरी तरह से अब बदल दिया गया है। देखिए, आज का दिन जैसे हमारे श्री राजनारायण सर ने बताया, हमारे प्रभारी प्रचार जी ने बताया, हमारे बीच बैठे हमारे मुख्य अतिथि साहब ने बताया कि मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। And it is in order to promote games and sports. अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था खेल के बारे में, जिसमें मेडल्स की हमारी बात हुई, लेकिन एक सेंस जो इस बार डेवलप हुआ है, जो गोल्ड मेडल की हम बात करें कि नीरज चोपड़ा जब भाला फेंक रहे थे तो यकीन करो मुझ सभी से ऐसा लग रहा था जैसे 135 करोड़ भारतीय उनके साथ भाला लेके चल रहे हैं और फेंक रहे हैं। अगर ये चीज, ये सेंस डेवलप कर पाए हैं तो ये
ऐसी महान विभूतियां हैं, ऐसे महान लोग हैं, जैसे कि आज हमारे बीच सीपी यादव साहब की एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं बात करूं, आप राष्ट्रीय चयनकर्ता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें। एक सर ने बहुत अच्छी बात कही, तराशने की बात। तो तराशिए खुद को इस कदर इस जहां में कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस और आपको दोबारा पाने की आस बनी रहे। आपको मुझे उम्मीद है कि आज इस सभा में बैठे हम सभी, हमारे शिक्षक साथी, हमारे बच्चे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस कर रहे होंगे आपके साथ जुड़कर। और सर, जैसे कि आपकी शख्सियत को देखकर लगता है कि आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, कि आप एक उच्च श्रेणी के खिलाड़ी ही नहीं, आप एक उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व के भी मालिक हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टेज पे बैठे हुए हमारे जो प्राचार्य जी हैं, ये भी एक फनकार खिलाड़ी हैं और मैं उसका गवाह हूं, इनके क्रिकेट के खेल का गवाह हूं। हाशिम साहब भी खिलाड़ी हैं। तो ये मंच पे बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, अपने बारे में बता, मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। तो मैं गवाह रहा हूँ अपने प्राचार्य जी के खेल का, क्रिकेट का, जब हम गए थे केवीएस की तरफ से खेलने के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपके साथ बैठकर, आपके साथ मिलकर, और मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ और कांग्रेचुलेट करता हूँ अपने हमारे जो श्री राजनयन सर हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, हमारी अल्पना मैडम हमारे बीच हैं और दूसरे साथी हमारे बीच बैठे हैं, जिनके भरसक प्रयासों से आज का दिन, ये आज का आयोजन आपके साथ हो रहा है और हम इतनी महान शख्सियत से मिल पा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त से अपने, क्योंकि सर को जैसा हम जानते हैं, सर वॉलीबॉल के जो फन के नवाज हैं, जो शख्सियत है, जो इनको फन हासिल है, और मुझे उम्मीद है कि the personality radiates positivity, it vibrates the positivity, and we are the receiver of your enthusiasm and zeal, and we hope and we promise that whatever we can do to promote games and sports in our Vidyalaya, we will do it, sir. We are very thankful to our in-charge principal sir for his exceptional efforts that he laid down to conduct this program and to arrange this meeting so that we can meet here. तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो समझते हैं इसलिए इन्होंने इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम चाहते तो अपने आप में जुड़कर मैं अपनी सुनाता, सर अपनी सुनाते, मैडम अपनी सुनाती, हो सकता था, लेकिन सर ने इस आयोजन को इतना बड़ा बनाने के लिए कि हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हो जिनसे हम कुछ सीख सके, जान सके, सुन सके। बच्चों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारा शिक्षकों का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का जो प्रयास है खेल कूद को बढ़ाने के लिए, वो बढ़ेगा और अगली बार आने वाले ओलंपिक में जो हमारे मेडल में 7 मेडल हैं वो डबल होंगे और उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे और हमारे अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट को पूरी दुनिया जानेगी कि वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन वाकई में हम बहुत गौरवपूर्ण आपके लिए महसूस कर रहे हैं, गौरवपूर्ण स्थिति रही आपकी हमारे लिए। एक बार फिर मैं अपने जो हमारे श्री राजनयन सर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए, श्री मोहम्मद हाशिम साहब को, श्रीमती अल्पना शर्मा मैम को और दूसरे शिक्षक साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।